વિનંતી કરું કે આ સભાનું સ્વાગત પ્રવચન કરે. ભારત માતા કી વંદે. જય જય શ્રી રામ. આ દેશના શક્તિશાળી મક્કમ સંરક્ષણ મંત્રી, ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, આપણા સૌના શ્રદ્ધેય માન્ય શ્રી રાજનાથસિંહ આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. ત્યારે આણંદ જિલ્લામાં અને ખંભાતમાં એમનું સ્વાગત છે. મંચ ઉપર આપણી સાથે લોકસભાના ઉમેદવાર માન્ય શ્રી મિતેશભાઈ, વિધાનસભાના ઉમેદવાર માન્ય શ્રી ચિરાગભાઈ, વિધાનસભાના દંડક માન્ય શ્રી રમણભાઈ, આ લોકસભાના સંયોજક અમારા સાથી માન્ય શ્રી લાલસિંહજી, બંને પૂર્વ ધારાસભ્યો માન્ય સંજયભાઈ, માન્ય મયુરભાઈ અને સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીઓ, ચૂંટાયેલી ટીમ અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પધારેલા ખંભાત શહેર અને નગરના સૌ નગરજનોનું આ તકે હાર્દિક સ્વાગત છે. વંદે માતરમ. આપણને બંને ઉમેદવારો વિજય થાય એવા આશીર્વાદ આપવા અને આપણે કેવી રીતે વિજય મેળવીએ એ માટેનું માર્ગદર્શન આપવા પધારેલા માનનીય શ્રી રાજનાથસિંહનું શ્રી સંજયભાઈ, માજી ધારાસભ્ય શ્રી મયુરભાઈ, માજી ધારાસભ્ય શ્રી પિનાકીનભાઈ, શ્રી સાગરભાઈ, રણજીતસિંહ મહામંત્રી જિલ્લો અને કિશોરભાઈ રાણા ફુલહારથી સ્વાગત કરશે. મોમેન્ટ હો આગે ત્યારબાદ આપણા બંને ઉમેદવારો માનનીય શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ, ઉમેદવાર આણંદ લોકસભા, તથા માનનીય શ્રી ચિરાગભાઈ પટેલ, ઉમેદવાર ખંભાત વિધાનસભા, રાજનાથસિંહજી બાપુનું સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ આપણા બોરસદની અંદર આઝાદી પછી પહેલી વખત વિધાનસભા જીતીને આવ્યા છે એવા રમણભાઈ સોલંકી, રાજેન્દ્રભાઈ રાણા, શિવાનીબેન, સુનિલભાઈ શાહ, ગિરીશભાઈ પટેલ, સુનિલભાઈ સોલંકી અને મનોહરસિંહ પરમાર પ્રભારી રાજનાથસિંહ બાપુનું સ્વાગત કરશે. અને હવે આ વિસ્તારના ક્ષત્રિયવાન આગેવાનશ્રીઓ પાઘડી અને તલવારથી સ્વાગત કરશે. શ્રી દિગ્વિજયસિંહજી, રાજેન્દ્રસિંહજી પરમાર, રાજભા, અમરસિંહ ઝાલા, વિરલસિંહ, જીલુભા સિંધા, સંદીપસિંહ ચુડાસમા, હર્ષદસિંહ સિંધા, હીરાબેન સિંધા અને ગીતાબેન સિંધા.
ચિરાગભાઈ હવે આપણા ખંભાતના ધારાસભાના ઉમેદવાર શ્રી ચિરાગભાઈ સભાને સંબોધન કરશે. भारत माता के जय श्री राम, जय जय श्री राम. आज रोज खंभात पाणियारी मैदान मुकामे मंच पर उपस्थित अपना केंद्रना संरक्षण मंत्री जी एवा आदरणीय राजनाथ जी अने सौ मंच महानुभावों साथे खूब मोटी संख्या में पधारेला शहर अने तालुकामांथी वडीलो आगेवानो युवानो दोस्तों माताओं ने बहनों 2024 ની ચૂંટણી એટલે એક નવા ભારતના સંકલ્પની ચૂંટણી છે. ત્યારે આદરણીય રાજનાથજી સાહેબ ખંભાતમાં પધાર્યા છે ત્યારે હું તો એમને એટલું યાદ અપાવીશ, સરજી 2017 में आप आए थे खंभात और आपने सभा की थी कलमसर गांव में. तो 2017 में जब आए थे तो खंभात में कमल खिला था. मतलब कि आपके पांव खंभात के लिए पावन है और आपके पांव पड़ने से हम खंभात जीत गए हैं. मैं तो इतना ही कहूंगा और खंभात के लोगों को आह्वान करता हूं कि आने वाली 7 तारीख को जंगी बहुमती में मतदान करिए और करवाइए. साथ में अपने को 2 मत देने हैं. खंभात विधानसभा के मतदारों को 2 मत देने हैं, एक विधानसभा के उम्मीदवार का और एक लोकसभा के उम्मीदवार का. अब आपको सबको मालूम है, पूरे देश की जनता को मालूम है कि पूरे भारत के जो आदरणीय और अपने धर्म के राजा राम अयोध्या में जो विराजमान हुए हैं राम लल्ला के मंदिर में, तो इनका श्रेय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को जाता है. तो 2 मत देने का अपने को जो राम जी ने आह्वान किया है और आपने को आशीर्वाद दिया है, तो 1 मत विधानसभा का जो देना है वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को देना है और 1 मत लोकसभा के उम्मीदवार को देना है, वो अयोध्या के राम लल्ला को देना है. इतना याद करके सबको मतदान के लिए आह्वान करता हूं और सबको विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मतदान होवे और फिर भी अपना नरेंद्र भाई का हाथ मजबूत करना है. गुजरात के पनोते पुत्र है और साथ में देश को मजबूत बनाना है और गुजरात की 2626 लोकसभा की सीट हम 5 लाख की लीड से जीत रहे हैं. अस्तु. भारत माता की जय. હવે આપણા લોકસભાના લોકલાડીલા ઉમેદવાર મિતેશભાઈ પટેલ આપણને સંબોધન કરશે. ભારત માતા કે આવું આટલું ઢીલું નહીં ચાલે. 2 હાથ અને જયઘોષ કરીએ અને આપણા આદરણીય રક્ષામંત્રી શ્રી રાજનાથસિંહ આવ્યા છે, એમનું સ્વાગત પણ થાય. ભારત માતા કે जय जय श्री राम. आभार. आज के इस कार्यक्रम में खंभात में अपने आदरणीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह, अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट राजेश भाई, अपने सह प्रभारक लालसिंह वडोदिया जी, यहाँ के उम्मीदवार चिराग भाई पटेल, मंचस्थ सर्व महानुभावों, आप सर्व खंभात तालुका और नगर में से आए हुए सभी माननीय आदरणीय महानुभाव, सभी युवा, मेरी माताओं और मेरी बहनों, सबको मेरा नमस्कार. हम सबको मालूम है कि 2014 से 2024 आदरणीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का नेतृत्व में देश में जो परिवर्तन आया है और देश विकास के पंथों पर जो चला है वो आप सबको मालूम है. हम सब 2014 से 24 में सबको मालूम है कि गरीब लक्षी कल्याणकारी योजना हर रोज एक नई योजना आती थी और वो सब गरीब के घर तक पहुंचती थी. गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए सरकार के साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी युवाओं ने भी बहुत मेहनत करके ये योजनाओं घर तक पहुंचाई है. 2004 से 2014 जो कांग्रेस का शासन था, हम हर रोज एक भ्रष्टाचार, एक कौभांड सुनते थे. 10 साल अपने देश के लिए कैसे गए कांग्रेस के शासन में. और 2014 में
सभी मतदाताओं ने कांग्रेस को नकारा और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाया। और अभी हम सब लोगों ने तय कर दिया है कि तीसरी बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। सभी जनता ने, सभी भारत देश के सभी मतदाताओं ने तय किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विकास करती है, विकास करती है और विकास करती है। इसीलिए गांव-गांव तक जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता है उनको आवकार मिलता है। करीबन मैं 300 गांव से ज्यादा गांव का प्रवास करके आया हूं। सभी गांव में खूब अच्छा अपने को आवकार मिला है। जो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में जो काम किया है और देश को जो विश्व गुरु तरफ और देश का मान सम्मान विश्व में जो मिला है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो मान सम्मान मिला है, इसीलिए सब मतदाताओं ने ये बात तय किया है। मेरे को मालूम है कि खंभात विधानसभा ऐसी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी 1990 से यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी का आता है। एक ही बार जब अभी चिराग भाई छूटे थे कांग्रेस में से, वो भी अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। पेटा इलेक्शन है और 2 वोट देने का है, एक चिराग भाई पटेल विधायक को और एक सांसद को। 7 मई को जब मतदान दिन है, मैं आप सबको प्रार्थना करने आया हूं, आप सबको विनंती करने आया हूं कि मतदान के दिन एक भी मत भारतीय जनता पार्टी का अपने घर में न रहे। उनको सबको बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी अभी भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता की है और जब तक बूथ तक सभी मत जाएंगे वो मत अपनी भारतीय जनता पार्टी कमल में ही गिरेंगे। आप सबको फिर से इतनी ज़्यादा में आप सब लोग आए हैं, आप सब घर का मैं अभिनंदन और आभार मानता हूं और आप सबको यही विनंती करता हूं कि 7 मई को हम सब लोग मतदान करने जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मत जो कांग्रेस और जो मत हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से आते हैं वही मेरे को मालूम है 2014 में भी यहाँ से 30,000 वोट लीड यहाँ से मिली थी खंभात से। 2019 में भी 7 विधानसभा में सबसे ज़्यादा 41,000 वोट आप सब लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया था और मैं 1,98,000 वोटों से जीता था। यही उम्मीद है कि ये बार भी 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और खंभात विधानसभा फर्स्ट नंबर पर रहे। यही मेरी प्रार्थना विनंती। अस्तु। भारत माता की जय। હવે જેમને સાંભળવા માટે આપણે સૌ એકઠા થયા છીએ એવા માનનીય રાજનાથસિંહ બાપુને विनंती करूं कि वो हमको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री मितेश भाई पटेल और संवाद असेंबली सीट कैंडिडेट श्री चिराग जी पटेल, विधायक श्री रमण सोलंकी, जिलाध्यक्ष श्री राजेश पटेल, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री लाल सिंह जी, पूर्व विधायक श्री संजय जी पटेल, श्री मयूर रावल पूर्व विधायक, पिनाकिन ब्रह्म भट्ट शहर अध्यक्ष श्री सागर पटेल, श्री रणजीत सिंह जी, श्री सुनील शाह, श्री राजन सिंह परमार, श्री दिग्विजय सिंह परमार, श्री संदीप सिंह चुड़ासमा, शिवानी बेन पटेल, हीराबेन शिंदा, गीताबेन शिंदा, श्री मनोहर सिंह, श्री सुनील सोलंकी और आनंद लोकसभा के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, केम छो? मजामा? वेरी गुड। मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक था कि गलत था? बहनों भाइयों, लंबे समय के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार को काम करते हुए आप देख रहे हैं। मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ
एक नए भारत का निर्माण करते हुए प्रत्यक्ष हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 के पहले भारत की क्या स्थिति थी। आप में से मैं जानता हूं गुजरात के बड़ी संख्या में लोग विदेशों में रहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लेते थे, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी है। बहनों भाइयों, 2014 के पहले भी विदेशों में कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे भी विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है और आज भी दुनिया के दूसरे देशों में हम जाते हैं तो मैं देखता हूं कि लोगों के व्यवहार में, लोगों के नजरिए में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। यह है हमारे भारत की स्थिति। आज सारी दुनिया में यह धारणा बनी है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। यह धारणा सारी दुनिया में बनी है। यही हमारा भारत 2014 में अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। करिश्माई काम किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि बहनों भाइयों, जो हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह 8 साल के अंदर ही जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, उसके बाद तीसरा देश कोई होगा तो भारत होगा। और बहनों भाइयों, जिस तेजी से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमारा भारत एक विकसित भारत होगा तो हमारा भारत ये विकसित भारत बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, और इसलिए मैं इन सब सारी चीजों की आपके बीच चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि गुजरात के बड़ी संख्या में लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं कि 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी की होने जा रही है तो भारत की होने जा रही है। बहनों भाइयों, यह जो है भारत के प्रति धारणा बनी है, यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। भारत के प्रति लोगों का बिल्कुल नजरिया ही बदल गया है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा थी, भारत यह गरीबों का देश है। क्या क्या कमेंट्स दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा किए जाते थे भारत के संबंध में, मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, हमारी सरकार बनाओ हम गरीबी दूर करेंगे, श्रीमती इंदिरा जी भी गांधी को कहती रही कि हमारी सरकार बनाओ मैं गरीबी दूर करूंगी। राजीव गांधी जी भी कहते रहे मेरी सरकार बनाओ मैं गरीबी दूर करूंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा सरकार बनना इसलिए आवश्यक है कि हम गरीबी को दूर करेंगे। कोई गरीबी दूर नहीं कर पाया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया है। मेरे बहनों भाइयों, भारत की 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर हो गए हैं और इसकी सराहना सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो रही है। और यह आंकड़ा मेरा नहीं है, यह आंकड़े हैं तो नीति आयोग का आंकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी जो हमारी फाइनेंशियल फर्म्स हैं, यह आंकड़े उनके हैं। यह आंकड़ा मेरे द्वारा नहीं दिया गया है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है।
और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के बीच जो मौलिक अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति गलत हो सकता है, व्यक्ति के संबंध में मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान की अकेली हम राजनीतिक पार्टी हैं जो हम जनता से बोलते हैं, हम वो करते हैं। हमारे कहने और करने में कभी कोई अंतर नहीं रहा। हमारे वर्ड्स और डीड्स में कभी कोई अंतर नहीं रहा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1951 जब जनसंघ के रूप में काम कर रही थी हमारी पार्टी, उस समय से लेकर आज तक हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर कोई देखे, हम उस समय से कहते चले आ रहे हैं, जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको क्लियर मेजॉरिटी मिल जाएगी, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, हम चुटकी बजाकर उसे समाप्त करेंगे। और बहनों भाइयों, देखा कि हम लोगों ने संसद में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम कहते रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। मुझे याद है कि जिस समय मंदिर निर्माण को लेकर सारे देश पे आंदोलन चल रहा था, हम लोग जब ये कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे, ऐ भाजपाइयों, काहे को रामलला को धोखा दे रहे हो? रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया 22 जनवरी का वह दिन आ गया जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मेरे बहनों भाइयों, मंदिर बनाने का भी वादा पूरा हो गया। और मुझे तो लगता है रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर, अपनी कुटिया से निकलकर, अपने हट से निकलकर बहनों भाइयों महल में प्रवेश कर चुके हैं। अब भारत में राम राज्य के आगाज को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लोग कहे राम राज्य कहते किसे हैं? जब लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व बोध पैदा हो जाए, हमें क्या करना चाहिए, इसके संबंध में लोगों के अंदर एक जानकारी पैदा हो, ज्ञान पैदा हो, तो मान लीजिए कि राम राज्य आ गया। लेकिन कर्तव्य बोध की जगह यदि अधिकार बोध हो कि नहीं, हमारा यह अधिकार हम लेकर रहेंगे, तो बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में राम राज्य नहीं आ सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी वनवास में जाना पड़ा तो कैकेयी के अधिकार बोध के कारण, कर्तव्य बोध के कारण नहीं, शेष सारे लोगों के अंदर तो कर्तव्य बोध था कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों ने यह भी कहा था अपने घोषणा पत्र में, हमारी सरकार बनेगी, क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी, हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। लोग ये कहते थे, दूसरे धर्म के मामले में आप लोग क्यों हस्तक्षेप करते हैं? किसने आपको अधिकार दे दिया? यह आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया जाता था। यहां तक कि हम लोगों के ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर हम भेदभाव करने वाले लोग हैं। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी भारत का नागरिक है, उसकी मां बहन बेटी हम जैसे लोगों की मां बहन बेटी है। बहनों भाइयों, उसके ऊपर कोई जुल्म और अत्याचार होगा तो हर हिंदुस्तानी उस मां बहन बेटी के साथ खड़ा होगा, चाहे किसी धर्म की मानने वाली रही हो मां बहन बेटी। शादी होने के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर आप उसकी छुट्टी कर देंगे। अन्य राजनीतिक पार्टियां वोट के चक्कर में इसे बर्दाश्त कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली थी और इसे समाप्त कर दिया। बहनों भाइयों, हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। हमने जो कहा था वह सब किया। आतंकवाद का, कांग्रेस की हुकूमत को आपने देखा होगा, आए दिन आतंकवादी वारदातें होती थी। 2008 की आतंकवादी वारदात
जो मुंबई में हुई थी, मैं उसकी आपको याद दिलाना चाहता हूं। बड़ी संख्या में हमारे पुलिस के अधिकारी मारे गए थे, अन्य हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। वहां के गृह मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की आतंकवादी वारदातें तो होती ही रहती हैं। अधिकांश राज्यों में इस हिंदुस्तान की कहीं न कहीं कोई आतंकवादी वारदातें होती रहती थी। लेकिन बहनों भाइयों, आज कोई कहे किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात हो रही हो? कश्मीर में कभी छिटपुट महीने में अब 1-2 हो जाए तो हो जाए। उसका कारण है हमारे पड़ोसी देश को अब एहसास हो गया है, भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है। भारत अब ताकतवर भारत बन चुका है। भारत के पास वह क्षमता है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत के अंदर यह ताकत है। नक्सलवाद भी समाप्त हो रहा है, क्योंकि कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना, इस प्रकार की हिंसक वारदातों का होना, मैं मानता हूं कि यह विकास में बहुत बड़ा बाधक है, और इस पर नियंत्रण पाने में हमारी सरकार पूरी तरह से सफल रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, चाहे किसी की सरकार रही हो, हर सरकार ने यही कहा कि हमारी सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचार को इस हिंदुस्तान से समाप्त कर देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो पहल की जानी चाहिए थी, किसी ने नहीं किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी से अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं नीचे के लिए, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हम क्या करें? किसी ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। पहली बार आजाद भारत में इस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। बहनों भाई, मुझे याद है 2014 में जब सरकार बनी, मैं गृह मंत्री था, हम दोनों लोग साथ बैठे थे, अधिकारियों की बैठक चल रही थी। मैंने पूछा मोदी जी से, आप सभी का अकाउंट खुलवा रहे हैं, जनधन खाता, इससे क्या होगा? कहे, राजनाथ जी बैठक समाप्त हो जाएगी तब मैं चर्चा करूंगा। और फिर उन्होंने बतलाया मुझे, और बहनों भाइयों, उसका प्रभाव मैंने वही देखा। जनधन, आधार और मोबाइल, इनकी ऐसी त्रिमूर्ति बना दी कि आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा निकलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, कलेजे को मजबूत करना पड़ेगा। एक कांग्रेस की सरकार आप बतलाइए केंद्र की, जिस पर कि कभी न कभी भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। और कोई मां का लाल, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो, यह कह दे कि हमारी सरकार के किसी मंत्री के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो। बहन भाइयों, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ शिखर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी नीयत साफ चाहिए, तभी जाकर यह नियंत्रित हो सकता है। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, यह मैं दावा नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम सिस्टम में बदलाव लाकर भ्रष्टाचार को कम करने की में हमने काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। यह है हमारी पार्टी। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया, यह कोई सामान्य उपलब्धि है। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को पता नहीं क्या हो गया है, जो मन आता है अनाप तनाप वो बोलते रहते हैं। अभी आज मैं भाषण सुन रहा था, कांग्रेस के जो सबसे दिग्गज नेता राहुल जी हैं, सबसे दिग्गज, उनका भाषण सुन रहा था। अद्भुत भाषण था उनका।
उन्होंने कहा कि इस देश के राजा महाराजा बहुत मनमानी करते थे, जब चाहते थे जमीन उठाकर किसी को दे देते थे। क्या हो गया है भगवान? माने जमीन उठाते, गुजरात में कोई जमीन उठाता है? जमीन उठाकर दे देते थे, जैसे कोई खिलौना हो दे दे। राहुल गांधी जी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारे देश के राजाओं और महाराजाओं ने जब देश में सारे राज्यों का विलय हो रहा था, तो हमारे राजा महाराजाओं ने सहर्ष अपने राज्य का विलय कर दिया था भारत में। यदि किसी ने नहीं किया था तो जूनागढ़ ने नहीं किया था, हैदराबाद की रियासत ने नहीं किया था, भोपाल की रियासत ने नहीं किया था। जिन राजा महाराजाओं ने करके देश के लिए दिखाया है, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल की रियासत के लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहनों भाइयों, ये लोग समाज को बांटकर राजनीति करने वाले लोग हैं। समाज को बांटकर राजनीति करने वाले लोग हैं। अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी है। अब इनके एक नेता हैं, आपने नाम सुना होगा, सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यह कोई नहीं कह सकता कि वो कांग्रेस में नहीं है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यहां कांग्रेस की सरकार जब जब रही है, उसमें एडवाइजर की बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जिस प्रकार की एक व्यवस्था है, भारत में भी लागू कर देनी चाहिए। परिवार का यदि कोई मुखिया, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसकी जो संपत्ति है, संपत्ति का 55%, 55% यह सरकार को दे देना चाहिए और 45% केवल उस परिवार के पास रहना चाहिए। क्या आपको यह मंजूर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको यह मंजूर है? जरा आवाज देकर बतलाइए। यह करना क्या चाहते हैं? यह कहां देश को ले जाना चाहते हैं? और बहनों भाइयों, इस देश के अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है, और मैं उन अर्थशास्त्री का नाम भी बतलाना चाहता हूं। मिल्टन फ्रीडमैन और फ्रेडरिक हायेक ने कहा है कि इस प्रकार की जो पुनर्वितरण की नीतियां होती हैं, इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को दबाने का काम करती हैं और उन्हें हतोत्साहित करती हैं। यानी फिर से गरीबी के गर्त में भारत को डालना चाहते हैं राहुल गांधी। और यह भी कहा है उन अर्थशास्त्रियों ने, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी तो एक आर्थिक मंदी का दौर फिर से भारत में आएगा। अब कुछ समझ में नहीं आता, कभी किसी को जमीन उठा के देने की बात कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। अरे कभी आप लोग यहां आए तो समझाइए तो, क्या कर रहे हो आप? और बहनों भाइयों, यदि मैं अपनी सरकार की सारी कामयाबियों की, सफलताओं की यदि चर्चा कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमको विफलता नहीं मिली है, हमको फेल्योर्स नहीं मिले, विफलताएं भी हमको मिली हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया। वैज्ञानिकों की हालत कैसी थी? क्योंकि हमारे रक्षा मंत्रालय में भी लगभग 7-8 हजार वैज्ञानिक काम करते हैं। मैंने देखा है उनको। जब उनका कोई प्रयोग विफल हो जाता है, क्या स्थिति बनती है? चंद्रयान-2 जब उन्होंने छोड़ा था, तो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया, साउथ पोल पर। तो बहनों भाइयों, सारे वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए। प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, प्रातः होते ही तुरंत सीधे बंगलौर पहुंच गए और वैज्ञानिकों से मिलकर गले लगाकर उनका ढाढ़स बंधाया था, चिंता मत करो, ऐसी इस प्रकार की विफलताएं जिंदगी में मिलती रहती हैं। और उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने वह करिश्मा किया, 1.5 साल के अंदर, कि चंद्रयान-3 तैयार किया। और आपने देखा कि हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर लैंडर उतारने में पूरी तरह से कामयाब हो गया। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वह हमारे भारत ने किया। मेरे बहनों भाई, यह है भारत की ताकत। कोरोना जैसा संकट,
मैं उसकी भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। कोरोना का संकट कोई छोटा संकट नहीं था, यह वैश्विक संकट था। विश्व का कोई भी देश कोरोना से अछूता नहीं था। लेकिन विडंबना यह थी कि भारत में कोरोना टीका जिसे बोलते हैं, वैक्सीन, बनती नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री सीधे वैज्ञानिकों से संपर्क करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, कहते हैं आप बनाओ, जो भी सरकार की मदद होगी दिल खोल कर मैं मदद करने को तैयार हूं। बहनों भाइयों, मेरे वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया, वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन बनाई तो केवल भारतवासियों को ही न लगी, 100 देशों को भी हम लोगों ने वैक्सीन मुहैया कराने का काम किया था। यह है हमारा भारत। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम कोरोना की वैक्सीन की 2 डोज तो सबको लगी होगी, नहीं तो 3 डोज भी लगी होगी। और जाकर दुनिया के दूसरे देशों में देख लीजिए बहनों भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कि 1 डोज बामुश्किल लगी है, नहीं कहीं तो वह भी नहीं लगी है। और भारत में 2 डोज और 3 डोज, और जिस भारत में वैक्सीन बनती नहीं थी। यह है हमारा भारत। भारत की ताकत के एहसास कराने के लिए कई घटनाएं हैं मेरे बहने भाइयों। आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 वर्षों से चल रहा है। आप सबको जानकारी है ना, रशिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। और जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ था रूस और यूक्रेन का, बराबर रूस के तरफ से भी बम चल रहे थे, गोले चल रहे थे, मिसाइल चल रही थी। लेकिन यूक्रेन में हमारे भारत के लगभग हजारों बच्चे, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था, कोई मेडिकल का कोर्स कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता बहुत ही परेशान हो गए भारत में। क्या होगा? हो सकता है रूस की तरफ से ऐसी मिसाइल आए, हमारे बच्चे यहां रहते हैं उनके ऊपर गिरे, उनकी जिंदगी के लिए खतरा पैदा हो जाए। तो उन बच्चों के माता पिता हमारे प्रधानमंत्री से मिले और कहा, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको जो भी करना हो, आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर भारत ले आइए। बहनों भाइयों, यह आसान काम नहीं था। देखिए हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता और एक ऊंचा कद, ग्लोबल लीडर का, वैश्विक नेता का जो कद होता है, वह देखिए। प्रधानमंत्री ने वही प्रधानमंत्री आवाज से ही सीधे बात की रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। 22,500 भारत के जवान, भारत के छात्र भारत लौट आए। यह है भारत, यह है भारत। इसलिए हम लोग घूम घूम कर अब लोगों को याद दिला रहे हैं, इसलिए वोट मांग रहे हैं। और बहनों भाइयों, जन सामान्य के लिए जिस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं वो आपको मिली हैं, चाहे पक्का मकान हो, नल के माध्यम से जल हो, बिजली हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बहुत विस्तार में जाकर उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। काम करने का की गति, काम करने की ललक कैसे बढ़ती है। आपको भी याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में जो हाईवेज बनती हैं, ये 8-9 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी। क्या कर दिया मोदी जी ने? आज हाईवे नहीं बन रही है बहनों भाइयों, तो 38-40 किलोमीटर पर डे बन रही हैं। यह है हमारा भारत। और हमारा भारत अब ये कमजोर भारत नहीं रहा है, ताकतवर भारत बन गया है। पहले हम लोग छोटी छोटी चीजें, राइफल, गोले, बारूद, मिसाइल, फाइटर प्लेन, सब दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, भारत में नहीं बनते थे। आज आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है मेरे बहनों भाइयों, यह सब सारी चीजें आज भारत की धरती पर बन रही हैं, भारतवासियों के हाथों से बन रही हैं।
पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते थे, अब हम दुनिया के दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। कांग्रेस के समय 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था, तब उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी। 5 साल के अंदर ही वह करिश्मा हो गया, हमने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है मेरे बहनों भाइयों। दुनिया के अभी फिलीपींस को भी हम लोगों ने मिसाइल दिया है। यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, मैं तो कहता हूं प्रत्याशी को भी मत देखो, प्रत्याशी को भी मत देखो। प्रत्याशी आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसके बारे में विचार करने का मैं समझता हूं कोई औचित्य नहीं है। आपको यह देखना है कि हमारे भारत का मस्तक दुनिया में कैसे ऊंचा होगा। बहन भाइयों, हम लोग जीते हैं तो देश के लिए जीते हैं, मरते हैं तो देश के लिए मरते हैं। यह है हमारा भारत। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप सभी का पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अब छोटी सी चीज मुझे याद आ गई, अब योग, मैं जानता हूं गुजरात में अधिकांश लोग योगा करते हैं। योगा करते हैं कि नहीं? यहां करते हैं, करते हैं। कोई कल्पना कर सकता था कि इस देश का कोई प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ की पंचायत में खड़े होकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा? जो योगा भारत की देन है, यहां के ऋषियों और मनीषियों की देन है। वह पूरे विश्व की पंचायत में खड़े होकर कहेगा कि मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित कर दिया जाए, विश्व में सभी देशों को योगा करना चाहिए। अब ऐसा करिश्माई प्रधानमंत्री कि सबको प्राणायाम करा दिया, सारी दुनिया को। अब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की मान्यता मिल गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इधर उधर की बातों के चक्कर में बहनों भाइयों हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत का मस्तक कैसे ऊंचा हो, यही हम सभी लोगों की चिंता का विषय होना चाहिए। और मैं तो आपके सामने अमेरिका के एक एम्बेसडर का, दुनिया का सबसे धनवान देश और ताकतवर देश कोई माना जाता है तो अमेरिका माना जाता है। अभी 4, 5, 6 दिन पहले मैंने एक उनका स्टेटमेंट पढ़ा, तो उस अमेरिकन राजदूत, उनका नाम एरिक गार्सेटी, उन्होंने कहा है कि, पहले अंग्रेजी में मैं बोल देता हूं, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भारत का भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर, भविष्य क्या होता है इसे महसूस करना है तो भारत आओ। और यदि भविष्य पर आप काम करना चाहते हो तो यह समझने के लिए भी भारत आओ। यह अमेरिका, दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश है, उसके राजदूत मिस्टर एरिक गार्सेटी ने कहा। यह मैं नहीं कह रहा हूं। और आज आपको जानकर खुशी होगी, 10 साल पहले दुनिया के दूसरे देशों में क्या स्थिति थी। सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो सीईओ बनते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो लगभग आप मान लीजिए लगभग सर्वे सर्वा होते उसके, क्या स्थिति थी। आज आपको जानकर खुशी होगा, सारे विश्व की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनमें 10 में 1 कंपनी का सीईओ कोई है तो भारत माता की कोख से पैदा हुआ हमारा भाई है। यह है भारत की हैसियत। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सबका पूरा समर्थन हमारे प्रत्याशियों को, हमारे मितेश भाई पटेल, वैसे मितेश भाई पटेल बहुत सज्जन आदमी है, देखिए देखने में भले लगते हैं, पहले भी सांसद, ये सांसद रह चुके हैं अभी। और हमारे दूसरे चिराग पटेल, ये तो चिराग हैं, यहां रहेंगे, रोशनी करेंगे। इसलिए बहनों भाइयों, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, यही अपील करने के लिए आया था। पुनः एक बार धैर्यपूर्वक आपने मेरी बातों को सुना है, इसलिए एक बार पुनः शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।
રાજનાથ સિંહનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ સફળ મીટિંગનું આભાર વિધિ